Hi, good afternoon, guys. This is Biplab here. We are just about to start with the session. एंड ये आज जो सेशन है ये रेगुलर सेशन के जैसा नहीं है, कुछ स्पेशल सेशन है। एंड आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपने करियर को एक ऐसी हाइट में लेके गए हैं जो शायद हमारे लिए एक सपना होता है जो पूरा करके दिखाया। सो ही इज गोइंग टू बी लाइव विथ अस वेरी सून। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रोहित विल बी विथ अस वेरी सून and then after that we are going to start this session. So Rohit is going to be live with us. I believe so Rohit has joined also, but a few more people they are also going to join. Okay, fine guys, so I believe we can start with the session. And just a moment, let me stop this screen sharing first of all. Just a minute, let me check. Okay, so let me stop this screen sharing first of all, just a moment. And let me adjust my camera a little bit. Okay, fine. So good afternoon, all of you. Am I audible to all of you guys? सबको मेरा आवाज आ रहा है? Yes, no, maybe. You can use your chat section. Chat section, it is open right now. Am I audible to all of you? Okay, fine. I believe so. Rohit is here right now. Rohit, you can unmute right now. Unmute कर सकते हो बेटा? Yes, Okay, sir. Very fine. good afternoon. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Now you can on your camera as well if you don't mind. Yeah, definitely, no, sir. Okay, fine. Mm, very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon, sir. Good afternoon, everyone who all have joined. Okay, कैसा लग रहा है रोहित अभी आपको? बहुत relaxed, sir. बहुत रिलैक्स। हाँ, ओके। I am enjoying my weekends now. I know what is weekends are, especially Saturday, Sunday. How you enjoy with your family, how you give them time. This is a new world which I am in now. एंड पहले का लाइफ कैसा था? It was okay. From monetary point of view, it was very okay. It was not that bad. I would not say that was bad. But हाँ, मतलब personal experience, the pressure I was in, the 24/7 thinking of what next day will be was a difficult part, sir. So यस राइट। that was not that okay in comparison to what for the last 2 months I have been going through. As Monica was following up with me ki when we can interview you, so I was telling her, please settle down. Let me settle down first. ओके Then only I'll be able to explain how am I experiencing these all things. So that is the reason, sir. फाइन। सो रोहित, Yes, sir. बहुत सारे लोग हैं आज आपके Yes, sir. बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हुए, एंड आपका ओवरऑल जर्नी कैसे गया? Definitely, yes, sir. Definitely. So I belong from Jharkhand. I've started my working in 2014 February with ICICI Bank. So can I take the company name also? यस That will यस be यस okay, यू na? कैन, यस एब्सोल्युटली। So it's been 10 and a half years I've been into banking and finance. So I was into core banking, but later on my career, when I grew up to manager level, senior manager level, I was enjoying that job. But at some point of view, when I was seeing my colleagues that they were not that, मतलब, they were also doing job apparently along with my side only, but they were on a very higher package. In say suppose if in 10 years I have reached around 12 or 13 or 15, they were approximately 20, 22. So then came a point when some of my colleagues switched from banking to fintech. Then I also realized that I should also do that. Then I started researching for this. Then I came through DBS on Facebook. Then I spoke to Prashant. First interaction was with her. Then Monica came in. And I had a very long chat. Say, suppose I took almost 10, 15 days in researching whether I am doing right or wrong, whether this will be a helpful thing for me or not. Because although I have done my graduation in IT, but post that I have not done a single thing in IT. And career point of view, that was a very risky question for me. But then Prashant also told me कि नहीं sir, banking के लिए है, career growth are there, opportunities are there. We help you in finding jobs also. Then I thought this is a very good deal because 20,000 is not that huge amount which I can't risk upon. But yes, this 20,000 changed my life. This 20,000 small investment, today I am enjoying my life. यस। From DBS only, through DBS only I realized, yes, how come it is possible? Because in your Facebook ad also you tell from non-IT to IT. So that is a very catchy thing for a person like me who's been into 10 years of sales, and I was doing good sales. I was not that bad performer or I was not doing good. I was doing good, but I was not happy. So that was the moment, sir. And apart from DBS IT, what they did, they made me ready for IT. They made me what is SQL,
what kind of fields you can go. Because in Nishant sir session, he is very frank and he is very upfront. He never realizes ki whether you will come next day or not. He is very focused that you should change. If you have come here for a change, you should get the change in any which way you want. So he's very upfront. He discusses with every new student who joins in. I still remember the first day when I joined the session, he asked me in and out about myself. Then he questioned me. Then he tried to know about myself, what I want to desire, what are my expertise. Then later on, the questions that he asked, that helped me a lot. Ganesh sir, the amount of effort that he made, late nights, evening, he awake at 12:30 also he's ready to make your CV. And the suggestions that he gave, that is very realistic. So these Okay. all things help me a lot, sir. So I'm Wow. very Thank grateful you for so much. DVS. And right now I have joined as a business analyst in Wow. a US based company. They are Mm-hmm. working for majorly US banks. This is a 40-year-old company, and Mm-hmm. I'm into service part. I'm looking after incorporations of new softwares, mergers of new banks, and Mm-hmm. maintenance part also. And there was this question mentioned, and many a times we hear that layoffs होते हैं, IT में ये होते हैं, वो होते हैं. Those all are rumors. It all depends upon the individuality, how you are taking up your job. So राइट ट्रू. that is a तो small रोहित, brief, sir. चलो नो इश्यूज, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा चीज बताया. आपने आप नाउ आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. तो Yes, sir. पहला चीज, आई बिलीव सो, ये जो झारखंड से आप बिलोंग करते हो, Uh, एंड डियर वी आर स्टेइंग इन पुणे, एंड आप Yeah. झारखंड से, राइट नाउ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आपने कभी हमारा इंस्टीट्यूट फिजिकली तो देखे नहीं थे, कभी भी नहीं, sir. ठीक Never. है? तो ये जो नाउ यू आर, आई बिलीव सो, झारखंड से ना काफी सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, लेट मी टेल यू, हाँ, हमारे हाँ. प्लेटफॉर्म से In हुआ. my batch also there were few. तो आप जब वहां से आप कनेक्ट हुए थे पहली बार, तो आपको क्या लग रहा था कि यार ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है? लाइक मैंने तो फेसबुक में जस्ट वीडियो देखा, उसके बाद सेशन में आ रहा हूँ, तो विप्लव मंडल नाम का एक बंदा आ रहा है, आने के बाद सेशंस ले रहा है, एंड देन उसके बाद उसके टीम उसके साथ बात कर रहा है. तो एक ट्रस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बिकॉज देखो एंड ऑफ द डे में मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, राइट? Definitely ना, sir. तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके दिमाग में क्या आ रहा था कि ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म हो सकता है? Sir, just to elaborate this with a very 2-minute short story of my personal thing. The हम्म. moment I was in touch with DBS for getting enrolled, हम्म. I was doing the induction program for my newer organization, my हम्म. last organization, which was हम्म. SDFC Life. हम्म. So I was in regular touch with the DBS people, and while हम्म. attending the sessions also, I was WhatsApping them कि क्या होगा हम्म. नहीं होगा. तो ये सर हम्म. डाउट तो पूरा था मेरे को कि मेरा हम्म. 20,000 कहीं डूब तो नहीं जाएगा. हम्म. मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ. एक फेसबुक का छोटा सा ऐड था 2 मिनट का. बट द हम्म. वे यू पीपल एक्सप्लेन मी ओवर कॉल, मोनिका ने हम्म. जैसा मेरे को समझाया कि नहीं हम्म. सर व्हाट वी डू, फिर उसने कुछ एक आधा रेफरेंस दिए मेरे को. तो मेरे हम्म. को बात करके लगा कि नहीं, दे आर टॉकिंग वेरी जेन्युइन. और हम्म. वो आपके वीडियो में भी दिखता था कि दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग टू डू. तो आई हम्म. रिस्क्ड इट. So I हम्म. risked it, and now I am getting fulfilled for it. So that चलो, risk was a very good part for me. चलो थैंक यू सो मच बेटा. मैं एक चीज Yes. में बताता हूँ रोहित, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ ना बेटा, यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी सिंपल बैकग्राउंड, वेरी सिंपल. मैं शायद इंट्रोडक्शन में ये चीज बात करता हूँ. माई फादर इज अ फार्मर, एंड 5,000 की उधारी लेके मैं पुणे में आया था आज से करीबन 20-22 साल पहले. एंड दैट 5,000 इट वाज लाइक ह्यूज अमाउंट फॉर मी, बिकॉज वो भी मेरे पास तो था नहीं, मेरी मम्मी ने किसी के पास से लेके आया था. दैट वाज आउट ऑफ माई माइंड, मुझे पता भी नहीं था. एंड आई हैव सीन माई फैमिली वेरी क्लोजली. माई मदर यूज टू गो ऑन द फील्ड, वो खेती में जाते थे, काम करते थे. आई हैव सीन माई फादर एज वेल वेरी क्लोजली. ठीक है, Yes, sir. मैं एक्चुअली बचपन से मैं अपने बड़े पापा बड़े मॉम के पास रहा हूँ, वहां से जाके मैंने पढ़ाई क्लोज किया, बिकॉज गाँव में हमारे उस लेवल का कोई स्कूल वगैरह नहीं होते थे. तो मुझे सिटी में मेरे मम्मी ने मुझे जब भेजा था, एट द टाइम ऑफ माई एज इट वाज लाइक 10 साल का मैं शायद रहा होगा, Yes, ठीक है? sir. एंड उस एज में मैं आया था, एंड वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत होता है, ठीक है? देन आफ्टर दैट इस प्लेटफॉर्म में, एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत करता हूँ, एंड पुणे में आता हूँ, IBM, AG, सेल्सविल, TCS. मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का. तो मैं जब अपनी करियर को नॉन IT से IT में लेके गया एंड ऑल, देन आफ्टर दैट इस प्लेटफॉर्म की जब शुरुआत होता है ना बेटा,
एक चीज हम लोग यहाँ पर ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। यस यानी बहुत बड़ी चीज है, एंड हम लोग यहाँ पर किसी के साथ कोई ना फ्रॉड्स करते। आज एक बच्चा आया था, लेट मी टेल यू रोहित, ज्वाइन करके बेटा 1 साल हो गया, एंड उसने क्लास बीच में ही छोड़ दिया। एंड आज आया, आने के बाद बोल रहा है सर मुझे हेल्प चाहिए आपसे, विदाउट आस्किंग एनी सिंगल क्वेश्चंस। मैंने मोनिका को बोला बेटा उनको न्यू बैच में ऐड कर दो और उनको तैयारी करवाओ। एंड ये जो ट्रस्ट है, जिस वजह से उन लोगों ने डीबीएस के साथ कनेक्ट हुई, ये चीज कहीं पे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर मेन फोकस। डेफिनेटली सर। एंड ये चीज गाइस मैं आप लोगों को सबसे मैं बोलना चाहूंगा, ये ट्रस्ट वाला जो है ना, हमारा ऑफिस में अगर इन करोगे तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, योर ट्रस्ट इज आवर एसेट। ये चीज रहेगा बेटा। किसी के साथ कोई स्कैम्स या फ्रॉड्स नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल एश्योरिटी है। एंड आई बिलीव सो रोहित आप भी बता सकते हैं ये ट्रस्ट हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। डेफिनेटली सर, मतलब for the last I have been enrolled for around 6 7 months now. It happens as I was in sales job. There were used to huge pressure of me for achieving my target. As I was in a team manager profile, so I used to travel a lot. तो मैं कभी कभार 1 2 हफ्ते क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाता था फॉर माय निशान सर के मॉक सेशंस। तो मेरे को कॉल आता था मोनिका का कि सर यू आर नॉट, मैं उनको ब्लंटली बोलता था कि मैं अभी मंथ एंड चल रहा है, बहुत प्रेशर है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो निशान सर भी बोलते थे यार रोहित तुम बहुत दिन के बाद आए, ऐसे कैसे होगा ये वो, तो दैट यूज्ड टू हर्ट्स मी। तो बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन आई थॉट कि नहीं, अब करना है तो करना है यार, आई हैव टू चूज एनी वन पाथ, आई कांट बी स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो फिर मैंने उस तरफ थोड़ा जॉब पे ध्यान देना कम स्टार्ट करा। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ओनली एंड इट रिजल्टेड मी आल्सो सर। वो कहते हैं ना, निशान सर भी अगर अपनी ऑफिस के बाद रात को 1 घंटा हमारे को दे रहे हैं, he is also giving efforts to us। और उनका सबसे अच्छा पार्ट था कि he remembers everyone, he can't fluke away like college guys कि आए और चले गए, that is not the राइट। thing। ओके। we also give to ourselves efforts। तो वो एक अच्छा पार्ट था सर। एंड डेली कितना घंटे निकालते थे आप अपने लिए प्रैक्टिस वगैरह ये सारी चीज करने के लिए बेटा? 2 to 2.5 hours सर। मैं मेनली एसक्यूएल पे प्रैक्टिस करता था बिकॉज बीए प्रोफाइल में एसक्यूएल इज द मेन पार्ट वेयर दे आस्क यू क्वेश्चंस एंड व्हिच इज बीइंग यूज्ड। तो मैं लिनक्स से ज्यादा एसक्यूएल पे फोकस करता था बिकॉज आई नीड टू ट्रैवल इनटू माय बैकग्राउंड ओनली सर। आई कांट डायरेक्टली स्विच बिकॉज 10 years का एक्सपीरियंस था, पैकेज भी हायर साइड पे था। तो अगर मैं कोर ऑपरेशंस में जाता तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो राइट ऑन राइट। दैट पार्ट इसीलिए मैं एसक्यूएल पे मेहनत करता था, तो मैं 2 3 घंटे निकालता था सर। आई यूज्ड टू डू दैट। गाइस ये नोट करो, ये रोहित दिन में 2 से ढाई घंटा खुद के लिए निकाला था, और निकाल के प्रैक्टिस। एंड आई बिलीव से ये 2 से ढाई घंटा निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल है, राइट ना बेटा? डेफिनेटली ना सर, जब भी जिसका भी जो ऑफिस आवर है उसके बाद अगर स्विच करना है और अगर है कि नहीं निकलना है तो इट हैज टू बी देयर सर, और इजी है सर। ओके, इजी है। डेफिनेटली 10 साल अगर मैं सेल्स में था एंड आई एम नाउ सिटिंग विद आईटी पीपल, और मैं देखता हूँ ना सर मेरे कलीग्स भी सब वही बैंक से आए हैं। द हम्म। सीनियर whom I am reporting, she's been into HDFC Bank for 6 7 years। हम्म। The friends of mine who are there all are from banking background only, it is who we ओके। are getting late। I should have अच्छा। joined this 2 years before, then I would नो have on इश्यूज। a very higher package right now। So नहीं that is the वो भी thing, sir। एक चीज कैसा है ना बेटा, मैं एक चीज मानता हूँ, दैट इज कनेक्ट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते Definitely, sir। हो आज अगर हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते तो शायद यहाँ पर आज मिल भी नहीं पाते थे, राइट नहीं ना? ना सर, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा रोहित, एक चीज है, सब लोग ना एक चीज से डरते हैं कि आईटी मतलब कोडिंग है, एंड कोडिंग हर किसी को आता नहीं है, राइट ना? कोडिंग से डर लगता है हमें। तो आपने तो एसक्यूएल सीखा है, एसक्यूएल में कुछ कोडिंग वोडिंग रहता है क्या बेटा? नहीं, अभी तक मेरे को 3 2 ढाई महीने हो गए यहाँ पे। अभी तक हम्म। एसक्यूएल का एसबी मेरे को यूज नहीं हुआ है। दी हम्म। बॉसेस आर टेलिंग कि कन्वर्जन का जब आएगा तो जब तुम्हारे को सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होगा, से सपोज बैंक ने एक सॉफ्टवेयर आस्क किया, आई बीइंग हम्म। इन बीए अलोंग विद माय प्रोग्रामर आई हैव रेडिड इट फॉर द हम्म। यूसेज, उस टाइम हम्म। पे थोड़ा बहुत रहेगा, तो दैट विल बी अ वेरी मिनिमल पार्ट, और हम्म। कुछ नहीं। मेरे को तो मतलब एक्सेल भी पूरे अच्छे से नहीं आता सर। आप तो कोडिंग अच्छा। की बात बहुत ज्यादा बोल दी है। राइट गाइस, प्लीज डेफिनेटली। रिमेम्बर आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है, जो चीज मैं नहीं जोर नहीं, जोर से हमेशा बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं आईटी सर। में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है बेटा, जैसे आज बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल है, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर का है, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है, दैट इज ट्रू। ठीक है। अच्छा रोहित, आपने टोटल ये नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए कितने इंटरव्यू दिया था बेटा अभी तक? ऑलमोस्ट सर मैंने 4 से 5 दिए होंगे सर। 4 से 5 इंटरव्यू आपने दिया है। हाँ, ठीक है, तो पहला इंटरव्यू आपका कैसा गया था? बहुत खराब गया था सर, मैं बोल ही बहुत नहीं खराब। पाया था, हाँ बिकॉज नर्वस था ना सर।
अभी तक सेल्स का इंटरव्यू होता था, केवल वर्बल कम्युनिकेशंस होते थे, क्या करोगे नहीं करोगे, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप्स, तो वो इजी होता है कन्विंस करना। बट हियर इन हार्डकोर सेल, मतलब ऑपरेशंस टाइप, दे आस्क्ड मी 2-3 क्वेश्चंस, तो आई गॉट अ बिट नर्वस, ऑल्दो आई आंसर्ड देम। देन लेटर दैट इवनिंग आई डिस्कस विद निशांत सर आल्सो, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू था। दैट फर्स्ट कंपनी वाज एनटीटी डेटा, their head office is in Pune, I guess. So they were looking for system administrator profile, तो वो था। उसके बाद कैप जेमिनी का इंटरव्यू दिया मैंने। कैप जेमिनी में इवन 2 बार इंटरव्यू दिया मैंने, 2 अलग अलग एचआर उसको। ओके, दैट्स वेरी गुड। वहां पे मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, बट सेकेंड राउंड फिर दे नहीं हो पाया वहां पे मेरा। मैं देन आपको एक चीज बताता हूँ अभी रोहित, आपने जैसे बताया ना बहुत नर्वस गया था, मैं आई स्टिल रिमेम्बर सूरज का प्रोफाइल था, बैंकिंग में था, फील्ड ऑफिसर। अपना आपको पता है फील्ड ऑफिसर का काम क्या होता है, राइट ना, वो जो लोन वगैरह अकाउंट ओपनिंग। वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस कोई यस। सवाल नहीं। तो बच्चे का इंटरव्यू शुरू था, उसने इंटरव्यू दे रहा था लैपटॉप में, ऐसे वीडियो ऑन करके इंटरव्यू दे रहा है। मिड ऑफ द इंटरव्यू ने लैपटॉप ऐसे शट डाउन कर दिया उसने होता है उसने सर। एंड ये चीज उसने बताया, बोले सर मैंने इसका उसके साथ एक या दो इंस्टेंसेस ऐसा हुआ जहां पर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। देन आफ्टर दैट ही स्पोक विद गणेश सर, निशांत सर, बोले सर ऐसी इंटरव्यू नहीं हो सकता, बेटर प्रिपरेशन मुझे करना पड़ेगा। सो उसने और टाइम निकाला, उसकी घर के अंदर आप कहीं पे गया, उसने वीडियो कॉल में मुझे दिखाया था, पूरी घर की दीवारों पे ना उसने सारे चिट्स लगा के रखा था, व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज डीबीएस, यस सर। डेटाबेस क्या होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर में, मतलब डीडीएल डीक्यू कमांड्स वगैरह सब कुछ। सुबह जब उठता था नींद से, उठने के बाद ब्रश लेके वो दीवार की तरफ देखता था, ऐसा हाँ ये पढ़ लिया एक बार, ओवरव्यू ऐसे किया उसने। और उसके बाद जो इंटरव्यू दे बेटा, आज उसके पास इंटरव्यू ऐसा होता है कि रात की नींद में भी पूछ लो तो फिर इंटरव्यू के लिए रेडी, ऐसा वाला कहानी है। बिल्कुल सर। तो ये जो तैयारी है, दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन इट इज रिक्वायर्ड फॉर इट, एंड आई बिलीव सो। ये जो जर्नी है, निशांत सर, गणेश सर, वेंकट सर, ऑसम जर्नी आपके साथ रहा होगा। ठीक है। नाउ यस सर। अभी आपका सेल्स वाला जॉब और आईटी वाले जॉब्स में क्या अंतर देखते हो आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाफ एन आवर आर वेरी लेस टू एक्सप्लेन दैट सर। 10 years। मैंने यस। अभी आपने कॉल करा था कुछ देर पहले, वी हैड अ डिस्कशन, मैंने बोला अभी मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। नो वन इज आस्किंग मी टुडे कि तुम क्या करोगे, मंडे का क्या प्लान है, व्हाट इज योर डेफिसिट, क्वार्टर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, नथिंग। नथिंग। इनफैक्ट जो यूएस के पीपल है विथ whom आई एम स्पीकिंग विद, अभी हमारे टीम में 2-3 बंदे हैं, दे आर इन यूएस, तो आई एम डूइंग अ यूएस शिफ्ट। I am doing 2 to 11. I am going 2 at the office and coming back at 11. So that is very comfortable for me also. मुझे लगता ही नहीं कि मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ। The ambience ओके। there in the office. Earlier मैं ब्रांचेस में रहता था, कस्टमर्स आते थे, बात करता था, बहुत हौच पौच रहता था। अभी ऑफिस जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं ऑफिस में भी हूँ। जो फन फ्राइडे एक्टिविटीज होती है, मतलब आई एम एक्सपीरियंसिंग इट अ लॉट सर। अगर आप ये डिफरेंस पूछोगे ना, तो आई हैव 10-20 pages टू एक्सप्लेन यू कि क्या क्या मैं डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सेल्स का अर्ली मॉर्निंग का वो कॉल्स। अरे डेफिनेटली। मंडे मंडे मॉर्निंग का 9 AM का कॉल, 2-2 घंटे का, किसका क्या सेल्स होगा नहीं होगा। ऑल्दो आई वाज अ वेरी गुड बैंकर, मैंने बोला था सर आपको, आई हैव क्वालिफाइड वेरी कॉन्टेस्ट्स आल्सो, बट वो फुलफिलमेंट नहीं आता था सर। फिर राइट। वही घिसा पट्टे वाला, मतलब नॉलेज ग्रो नहीं कर रहा था सर, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। अभी भी मैं बैंक का ही काम कर रहा हूँ, बट आई एम नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यस राइट। वेर आई एम एक्सपीरियंसिंग अ वेरी गुड थिंग्स। तो वो डिफरेंस तो है सर। सेल्स टू दिस, तो मैंने आपको बोला 1 वर्ड में, अभी आपने भी वो वर्ड यूज करा था, हेल टू हेवन है सर ये। राइट। पता है डेफिनेटली। बेटा, पता है। और बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर बिफोर माय ग्रेजुएशन, आई वाज इन सेल्स। मैं इंडिया इन्फोलाइन के लिए, वो होता है ना आईसीआईसीआई का शायद, वो जो सेल्स वगैरह होता है, प्रीमियम सेल्स वगैरह, हाँ इंश्योरेंस सर। पे लेंगे ना, यस सर, तो यस सर, उनमें यस। मैं था। मतलब सुबह से लेके सुबह 8 साढ़े 8 बजे से निकालना, रात की 12 बजे तक मीटिंग चल रहा है ब्रांच मैनेजर के साथ। एंड मतलब सैलरी कितना था, 4,000 की सैलरी था, लेकिन रात की 12 बजे तक बैठ के वो सारे मीटिंग अटेंड करना एंड ऑल अदर थिंग्स, बहुत टफ रहता सर। बहुत टफ रहता है। अच्छा एक चीज है रोहित, बहुत यस सारे सर। बच्चे ना इस बात के लिए डरते हैं, बिकॉज आईटी में फ्यूचर कैसा है। सो व्हाट डू यू थिंक, सो कि आईटी का फ्यूचर कैसा रहेगा इन बहुत फ्यूचर? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो देख रहा हूँ मेरे साथ के कलीग्स हैं जो जो हम्म मेरे साथ आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करते थे, दे वर हम्म इन दिल्ली ओनली। तो आज जो वो लोग पिछले 8-9-10 साल से हैं, जो मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, दे आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 8-10 years एंड दे आर वेरी हैप्पी। फ्यू आर हम्म डूइंग 100% वर्क फ्रॉम होम। कोई हम्म डेलॉयट में प्रोजेक्ट मैनेजर है विद अ वेरी वेल्दी पैकेज ऑफ 38-39 लाख रुपीज। आई हैव हम्म तो हम्म जस्ट स्टार्टेड हाफ ऑफ देम।
हम्म बहुत बढ़िया है सर. एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड, this is a very golden opportunity because people are looking for you. So be prepared with your banking operations and SQL and your presentable skills, your communication. These all basic things are required, sir. Banking has to be there. आप इंडियन राइट बैंक ही जानो, मेरे को भी यूएस बैंकिंग का कुछ नहीं पता था. इन इंटरव्यू दे आस्क मी फ्यू थिंग्स, तो मैंने कुछ कुछ गूगल से पढ़ लिया था एक रात पहले. तो कुछ चीजें मैं बोल पाया, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वो भी हमारे जैसा ही बैंकिंग यूज करते हैं, बस उनके थोड़े वोकेबलरीज अलग हैं सर. हम यहाँ करंट हाँ अकाउंट बोलते, वो वहाँ चेकिंग अकाउंट बोलते. यही राइट सब है. डेफिनेटली सर, थोड़ा होमवर्क करेंगे ना सर, तो इट इज वेरी डूएबल. नॉट अ वेरी बिग टास्क लगता है स्टार्टिंग में. तो मेरे जैसा 10 साल का एक्सपीरियंस अगर बंदा सेल्स का कर लेगा, तो यंगस्टर्स जो 2-3 साल में है सेल्स में, दे कैन तो इजीली डू इट सर. और राइट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. बहुत है बहुत. guys IT का opportunity it will be like unlimited for next around I can say like 20-30 years तो बहुत dominating रहेगा because अभी रिसेंट एक डेटा रिलीज किया है यूएस ने ही किया है हम लोगों ने नहीं किया दैट इज अभी H1 वीजास का कुछ तो चल रहा है उसकी अकॉर्डिंग करीबन 70% पीपल देयर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ जो गूगल में माइक्रोसॉफ्ट में मेटा में जाके जॉब करे वो इंडियंस है आप सोच के देखो ये यूएस ने जैसे डेटा रिवील कर दिया ना बाकी दुनिया ने बोला कि बेटा आप हमारे पास आओ अभी जर्मनी फ्रांस चाइना जो इतनी बड़ी बिगेस्ट कंपटीटर है फॉर द वर्ल्ड दे आर सेइंग कि हमारे पास आओ हम लोग वी आर गोइंग टू पे यू दैट काइंड ऑफ अमाउंट एंड अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ मैं नोएडा में था एंड गूगल ने वहां पर 61,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस एक्वायर किया है अभी नोएडा में एंड मुझे एक चीज समझ में आ गया बिकॉज यूएस ट्रम्प बाबा ने जैसे यूएस में जाके हथौड़ा मार दिया कि नहीं इंडियंस को मत लो यहाँ पर बाहर से लोग नहीं आना चाहिए इन लोगों ने इंडिया में ही सेटअप बिल्ड कर दिया सो दिस इज अ डेफिनेटली ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई बिलीव सो रोहित ये चीज बहुत हेल्प करेगा फॉर पीपल दोस हु आर कमिंग और विलिंग टू कम इन आईटी सेक्टर राइट ना डेफिनेटली ना सर. बिकॉज हम भी जितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज फॉर यूएस बैंकिंग ओनली. और इंडियन हम्म ऑफिस, इवन द कंपनी विच आई एम वर्किंग, दे हैव ऑफिसेज इन वेरी मेजर सिटीज. पुणे दे हैव ऑफिस, अ वेरी ह्यूज ऑफिस. हम्म बॉम्बे दे हैव, Calcutta they have a small office. In Delhi they have Noida and Gurgaon. Chennai they have a very big office. Hyderabad they'll be opening it very shortly. वाओ इट मींस ग्लोबल लेवल पे इंडियन बेटा इंडियन माइंडसेट का डिमांड है मार्केट में Definitely ना सर. डेफिनेटली डिमांड है नाउ एक चीज रोहित आप जब इंटरव्यू में जा रहे थे ऑब्वियसली पहला 2-3 इंटरव्यू खराब जाता है दैट इज ट्रू बेटा लेकिन उसका कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपने बना के रखा है कहीं पे सर बना के तो रखा था, अभी हैंडी तो नहीं है. हाँ हाँ बट नहीं मोर नहीं ओवर अभी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मुझे चैट्स में पूछ रहे बोले सर सर रोहित के पास से वो क्वेश्चन हमारे पोर्टल में अपलोड करवाओ नहीं सर, जनरली मैं इस पे ब्रीफ दे देता हूँ. निशांत सर जो भी क्वेश्चंस करते थे ना, उनका बहुत बेस्ट फॉर्मूला था. वो हम्म क्वेश्चंस लिखवाते थे. से सपोज इज इंटरव्यूइंग मी, तो और हम्म जितने हम 5-6 जने रहते थे, वो सबको बोलते थे कि तुम लोग लिख के रख लो ये क्वेश्चन. एंड दोज हम्म क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल सर. वही सारे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग इन द मार्केट. यस जो राइट हम 2-4 ग्रुप के लोग इंटरव्यू देते थे, सब अपना अपना शेयर करते थे. तो उस टाइम तो वो थोड़ा याद ध्यान में था सर. अभी आप तुरंत पूछोगे तो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर इट. नहीं नहीं बट नहीं या मैं आई नहीं हैव, एंड लिखवाऊंगा आई विल शेयर इट इन द पोर्टल लेटर ऑन. फाइन नो इश्यूज तो मोनिका मैम आपका सेशंस के बाद करेक्ट करेंगे वो सारे हाँ, तो उसको उठा के एक बार जरूर भेज दो मैं मोनिका मैं मैम मैं को मैं आई विल शेयर इट विद हर. ओके तो दैट आई गाइस नो. जो लोग मुझे ये पूछ रहे हो ना कि सर क्वेश्चंस एंड ऑल तो मोनिका मैम से कनेक्ट हो जाना रोहित से वो क्वेश्चंस लेके पोर्टल में अपलोड कर देंगे एंड वहां से क्रॉस चेक कर लेना ठीक है तो रोहित आपका जॉब लोकेशन कहाँ पर है बेटा अभी नोएडा है सर, सेक्टर वाह 62. क्या बात कर रहे हो मैं हमारा न्यू ऑफिस सेक्टर 62 में ही है कहाँ पे सर? नोएडा में आईथम में बेटा क्या बात कर रहे हैं, मेरा गैलेक्सी बिजनेस पार्क आइथम तो बगल में वाह सर. I'll visit one place then. I'll Item is be very close to my place. I'll be there by 23rd I believe so 23rd 24th को मैं दिल्ली में हूँ नोएडा में ही हूँ Okay, नहीं सर, by 16th I'll be going on a leave. नो नो जाने दो मैं आईटी का एक सबसे महीने में बढ़िया बात है सर, लीव भी मांगनी नहीं पड़ती, दिया जाता है. अच्छा सेल्स में दिया जाता मांगनी पड़ती थी. है एंड वो भी 3-4 अप्रूवल के बाद हाँ. यार आई एम हम्म टेकिंग 10-12 days of leave and the boss is very okay. हाँ ठीक है रोहित, जाओ, नो प्रॉब्लम. ठीक है सो रोहित सर इज सॉरी रईस सर इज देयर राइट नाउ नोएडा में जो हमारा ऑफिस न्यू ऑफिस अच्छा. बिल्डअप हुआ अच्छा. तो रईस सर इज देयर एंड आई बिलीव आई विल बी देयर 23rd से मैं वहाँ पर रहूंगा आई बिलीव सो एंड इन ओके. द नेक्स्ट टिल नेक्स्ट मंथ मैं वहाँ पर ही हूँ सो ओके. तो तब आप तो फिर जैसे भेंट हो पाएगी सर. देन आई यस विल बी एबल टू ऑब्वियसली मीट यू अप.
एंड फ्रीक्वेंटली वहाँ पर जाना आना रहेगा, बिकॉज अभी ये वहाँ पर न्यू ऑफिस है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल दे विल कम एंड मीट विद अस, एंड आई बिलीव आपके साथ भी वहाँ पर और ये मुलाकात हो। पूरा एरिया तो वही है सर, पूरा राइट। कॉर्पोरेट ही है। आइथम में भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एब्सोल्युटली। गैलेक्सी बिजनेस पार्क ऑल्सो। आई रियली इम्प्रेस्ड इन नोएडा में, जब मैं गया था ना बेटा इस बार, मैंने देखा यहाँ पर इंडस्ट्री भरपूर है, हाँ, भरपूर इंडस्ट्रीज है। एंड वो एक बहुत बड़ा आईटी हब में कन्वर्ट हो गए होने वाला है, आई बिलीव सो। बैंगलोर के बाद वो शायद नेक्स्ट हो सकता है, हैदराबाद अभी सेकंड में है आई बिलीव सो। तो आई बिलीव सो वो नोएडा बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। पुणे में भी है बेटा, पुणे में भी ओपनिंग है। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर पुणे का क्या है, पुणे में भी है। पुणे में तो आज तो मैं चेक कर रहा था, करीबन 14,000 के ऊपर जॉब ओपनिंग है, 14,000 जॉब ओपनिंग है। दैट इज इन एसक्यूएल डोमेन ओनली, ओनली एसक्यूएल डोमेन, नॉट इन द रेस्ट ऑफ द। ओपनिंग्स तो ह्यूज रहते सर। मैं यस अभी सर। भी नौकरी पे सर्च करते रहता हूँ, एनी डे 10,000 12,000 जॉब्स दिखती है मेरे को। और मैं वाह। अभी भी आपको बोला फोन पे, मैं अभी भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ गणेश सर का, एवरी डे अपडेटिंग योर नौकरी प्रोफाइल, डूइंग चेंजेस ऑन योर प्रोफाइल। टाइमिंग्स थोड़ा मेरा इधर उधर हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि आई अपडेट इट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज मेरे को रुकना नहीं है सर। नेक्स्ट राइट। स्टेप आई हैव टू गो ऑन अ हायर साइड। एंड और एक चीज, जैसे मैं कॉल पे बता रहा था, थोड़ा सा लिंक्डइन के ऊपर ध्यान रखना बेटा। हाँ, दैट आई विल स्टार्ट बिकॉज डूइंग इट सर। यस, फॉर गाइस जिनका प्लेसमेंट वगैरह हो चुका है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, लिंक्डइन इज द की। बिकॉज लिंक्डइन में आपको बहुत सारे कंपनीज का, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये जो मेटा जो कंपनीज है बड़े बड़े, ओराकल वगैरह, इनका एचआर, उनकी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ आप एक ग्रुप क्रिएट करो, एक का अच्छा नेटवर्क बनना चाहिए। सी नेटवर्क बिकम्स योर नेटवर्क। तो वो नेटवर्क को बनाना है। एंड आज जब आप आज से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कंपनी स्विच करोगे ना बेटा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन टू वर्क डाल दो, प्रोफाइल अपलोड कर दो, इमीडिएटली आपका एचआर वगैरह वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। यस सर। अभी अशोक कमले के भी प्लेसमेंट्स वैसा हुआ है, आई बिलीव सो। अनुकुल मिश्रा का भी प्लेसमेंट हुआ हुआ है एंड अभी रोहित, मैं आपको बताता हूँ, हमारा हाईएस्ट अचीवमेंट एक तो टेस्ला है, दैट इज आई बिलीव सो यू नो इट, जो टेस्ला में प्लेसमेंट हुआ है। और एक अभी एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ यूके में, मुझे बताओ सर। मोनिका बता रही थी। सो इट्स लाइक ए ह्यूज थिंग फॉर अस। एक सपना लेके यहाँ पर बच्चे आते हैं, जब पूरा करके घर जा रहे हैं, आई बिकम वी बिकम्स लाइक वेरी हैप्पी ऑन इट। यस सर। सो यस, ऑब्वियसली आप लोगों का भी सपोर्ट उस लेवल पे चाहिए, लेट मी टेल यू नथिंग ऑन दैट। सो गाइज, आई बिलीव से सेशंस काफी इंटरेक्टिव रहा है। रोहित, आप अपने जो कलीग्स है उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, जो लोग आपके साथ बैठ के सीखते थे? सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड चेक कर लो, मतलब ऑन हम्म। व्हाट एक्सपीरियंस यू आर एंड इन आईटी व्हाट डोमेन यू वांट टू गो, दैट विल बी वेरी हम्म। हेल्पफुल। ये निशान हम्म। सर भी कहते हैं कि आप पहले हम्म। अपना बैकग्राउंड चेक कर लो। इट इज़ हम्म। नॉट कि मैं कल को उठा और मेरे को कहीं भी हो जाएगा, इट इज़ नॉट दैट। हम्म। एंड डिसिप्लिन होना होगा थोड़े। हम्म। जो यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें रेगुलर आना पड़ेगा। हम्म। एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गणेश सर स्पेशली फॉर नौकरी हम्म। प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज माई हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को कॉल्स नहीं आते थे बिकॉज आई वॉज नॉट अपडेटिंग माई प्रोफाइल। द हम्म। मोमेंट आई स्टार्टेड अपडेटिंग इट, कैप जेमिनी हम्म। का कॉल आया, एंटिटी डेटा का कॉल आया। एंड इन फर्स्ट राउंड ऑफ कॉल ना सर, एचआर कभी नहीं पूछता कि तुम किस बैकग्राउंड से हो, नहीं हो। बस वो ये हम्म। पूछता है तुमने जो सीवी पे अपडेट करा है वो है, मैंने बोला हाँ ये हम्म। है, दैट्स इट। अच्छा। तो वो वैसा हाँ, वेरिफिकेशन चेकिंग ऐसा कुछ नहीं होता सर, यहाँ कुछ भी से नहीं एक होता पॉइंट रेस हुआ है बेटा। अभी ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे मेरे जैसा, आई एम फ्रॉम बैचलर ऑफ आर्ट्स। है। ठीक है, आप तो आईटी से Sir, I have a बैठे US थे। colleague who is a bartender. Now he's working with me क्या in बात कर रहे US. हाँ, he was a bartender. मैंने उसके LinkedIn पे प्रोफाइल देखा। हो? Earlier he अरे। was telling me I thought he's joking with me, but मैंने उसके प्रोफाइल पे देखा he was a हम्म। bouncer, he was a bartender, and now he's doing with my company. And US is heading a team for the last three गाइस, years. अगर आप लोगों को ये मेरी बात कभी कभी ऐसा लगता था ना कि इट्स लाइक फनी जोकिंग हो रहा है, बेटा ऐसा नहीं है। रोहित अभी ये सामने है। ठीक है, ये लोग जो बच्चे, अब मैं बोलता हूँ ना, कोई भी बैकग्राउंड वाला बच्चा जा सकता है, स्किल मैटर हाँ, करता है और कुछ नहीं है, राइट ना? तो प्रेजेंट इसमें काउंट करता है सर, पास कोई नहीं पूछता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाता है। हाँ तो पॉइंट टू बी नोटेड। सो रोहित, आप अपनी करियर को अभी कैसे प्लान कर रहे हो कि अभी अगले 2 से सर, 3 साल के right अंदर now I अपने have आप? joined as a specialist हम्म। in business analyst. The next target is becoming a project manager. For that, I need to do a certification, which I have हम्म। already enrolled myself and I'm हम्म। preparing for it. So by हम्म। next month, say suppose December, I'll be हम्म। achieving it. हम्म। And going forward, बस इसमें आगे बढ़ना है sir. Because now I have changed my track. Earlier अभी I अगर was, मान लो, ये तो आपने लर्निंग का पाथ बताया, ऑब्वियसली लर्निंग बिकम्स योर अर्निंग पाथ, नथिंग बट yes दैट। sir. आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत बड़ी बात है। मैं आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चों को बुरा लगेगा बेटा, बहुत बुरा लगेगा।
मैं अभी कुछ दिन पहले ना आईफोन आ रहा था मार्केट में। मैं गुड़गांव में, मतलब नोएडा में जो आईफोन का ऑफिस है, पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में है। लाइन लगा के रात की 1 बजे से लेके सब लाइन लगा के बैठे हुए थे आईफोन लेना है। एंड शायद जिनको भी लेना था वो क्रेज था, ठीक है चलो, लेकिन वही जगह में अगर उनको जाके पूछोगे ना, जस्ट यू नीड टू इन्वेस्ट योर लाइक 30,000 फॉर योर करियर डेवलपमेंट, ये जो आपका 5 लाख का पैकेज वो आपको 10 लाख या 12 लाख में लेके जाना चाहिए। वहां पर ना हजार सवाल आता है कि क्यों करो, क्यों करो, क्यों करो, मतलब वाई 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 वाई, ऐसे चलेगा। गैस, जब तक आप अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना बेटा, स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। एंड रोहित हैज गॉट द प्रॉपर ट्रैक, आई बिलीव सो। वो ट्रैक पकड़ चुका है, उसको पता है कि इसके बाद मुझे नेक्स्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जाना है, तो मुझे स्किल यस सर। सेट को और डेवलप करना है। एंड उसने ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। एंड दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इन्वेस्टमेंट, एंड यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पैसे का भी पेड़ लगा जा सकता है बेटा। आई एम सो सॉरी, ये शायद थोड़ा सा वियर्ड लगेगा लोगों को, लेकिन ये फील होता है मुझे, पैसे का भी पेड़ लगा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि पैसा मिलता कहाँ पर है। सो इन्वेस्ट ऑन योर राइट ट्रैक, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एंड आई बिलीव रोहित को मैंने जब मेरे साथ 1 to 1 में बात हो रहा था, ऐसे कि रोहित, अभी तो जस्ट जर्नी की शुरुआत है, उत्तर डेफिनेटली बाकी सर। है बेटा। ठीक है, अभी ट्रैक मिल गया ना सर। अभी ट्रैक मिल गया है। The DBS, the only thing that you people हम्म, did for me was giving me a track, giving me a हम्म, confidence कि yes, it is doable। जब मैं yes, वहां देखता था लोग आ रहे हैं, कोई हम्म, बैचलर ऑफ साइंस किए हुए है, कोई टीचर है, हम्म, but they are also preparing and achieving it। तो वो गूज बम देता है ना सर, वो किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो बाय राइट। डिफॉल्ट आ जाता है आपको। अच्छा, और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपने ज्वाइन करके 4-5 महीना हो गया था, राइट ना बेटा? मतलब अभी इधर में। प्लेसमेंट होके आपका, मतलब सॉरी, जब से आपने ज्वाइन किया तब से 4-5 महीना हो गया था आपका प्लेसमेंट की जर्नी तक, राइट ना? 5-6 यस महीने सर। लगे थे। यस सर। यस सर। इस दौरान पे आपने आपको अपने मेंटली कैसे प्रिपेयर रखा है ऑलवेज? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना कुछ कुछ नेगेटिव लोगों की साथ में आ जाते हैं, और उस दौरान पे खुद को भी नेगेटिव कर लेते, जो करने वाला था वो भी रास्ता भटक के दूसरी जगह में चले जाते, और जो नेगेटिव कर रहे हैं उसका तो कहानी अलग ही है। तो इनसे कैच के कैसे आपने बच के रहे इस सेशन? मैं फोकस था सर, मेरे को बहुत डिटरमेंट था कि मेरे को इस सेक्टर में जाना है। एंड हम्म, बिकॉज ऑफ माय पीयर प्रेशर, जैसे मैंने बोला ना कि सर जो मेरे बाजू में बैठ के कल को मेरे साथ आरटीजीएस एंट्री मारा करता था, आज वो हम्म, मेरे को फोन करके बोल रहा भाई मैं तो डेलॉयट में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। मैं हम्म, उसका हम्म, लिंक्डइन प्रोफाइल देखता था, मतलब आई यूज टू गेट जेलस फ्रॉम इट। हम्म, ऑल्दो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट भी करा, बट हम्म, वो एक जो जेलसी था ना, मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि जब वो कर रहा है अच्छा, मेरे साथ रह के तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वॉट इज अच्छा, दैट विच आई एम लैकिंग इन, तो वो वहां हम्म, पे मेरे को डीबीएस ने हेल्प करा सर। वो हेल्प हम्म, मैं उस फ्रेंड से नहीं ले सकता था कि तुम मेरे नहीं, को रात को 10 बजे आके 1 घंटे क्वेश्चंस पूछो, इंटरव्यू लो। हम्म, उसका अपना लाइफ है, ही इज माई फ्रेंड, ही कैन हेल्प मी इन माई नीड्स, बट ही हम्म, कान ट्रेन मी टू बिकम यस लाइक सर, हिमसेल्फ। वो हाँ, फ्रेंड मेरा डीबीएस आईटी था सर। यू पीपल हम्म, डिड दैट फॉर मी, दैट लेट इवनिंग 1 hours। मुझे मतलब हम्म, ये भी लगता था कि गणेश सर कहते थे मैं अभी बस अपने ऑफिस से आया हूँ, आई विल बी हम्म, रीचिंग होम एट 12 एंड आई विल डू योर सीवी क्रिएशन। मतलब सुन के भी कैसा लगता है सर। मेरे को हम्म, भी आप कह रहे हो वीकेंड्स में, मोनिका मेरे को पूछती है आप वीकेंड में एक सेशन दोगे अपना, हम्म, तो आई फील हाँ मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। और वो लोग अपने थैंक यू, ऑफिस के बाद हमारे लिए एफर्ट्स दे रहे हैं, तो वो अच्छा लगता था सर। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ना सर। एंड तो फिर लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए बेटा डीबीएस एंड डीबीएस की पूरी टीम के ऊपर। इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सर। अगर लोग करेंगे तो उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है। हम्म, क्वेश्चंस तो आएंगे सर मन में, मेरे भी बहुत क्वेश्चंस आए। मैंने दस हम्म, दिन तो केवल मोनिका से चैट पे ही बात करी, क्या हम्म, होगा नहीं होगा, क्या फ्यूचर है। मैंने आपके यूट्यूब से कितने वीडियो सर्च मारे डीवीएस आईटी के, बट थैंक यू, दैट 20,000 पेड मी वेल। थैंक यू वेरी सो मच। शॉर्ट टर्म सर, वेरी शॉर्ट टर्म। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आई बिलीव सो मैं चैट सेक्शन को ओपन करने वाला हूँ 2 मिनट के लिए। एंड दिस द न्यू जर्नी फॉर रोहित, एंड आई बिलीव सो सब मिलकर विश करना चाहिए रोहित को। सो रोहित, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अभी थैंक आपकी यू वेरी जर्नी की मच सर। शुरुआत है। थैंक यू सर। एंड थैंक आई यू। वांट यू शुड ग्रो लॉट लॉट, एंड यहाँ से जस्ट तो फिर से मैं बोलूंगा, जर्नी की शुरुआत है। एंड कीप इन टच विथ अस। डेफिनेटली ना सर। रईस सर है, वेंकट सर है, निशांत है, ऑल पीपल विल बी देयर विथ यू। ठीक है, तैयारी उस लेवल पे करो बेटा जिस लेवल पे आप सोच रहे हो कि आपको जाना है, बिकॉज आई बिलीव सर नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 28 से लेकर 30 के बीच में, इतना ईजिली इंक्रीज सर, आना चाहिए। बिकॉज बीए प्रोफाइल में तो इतना पैकेज बहुत आराम से मिलता है सर। पीएम राइट। को तो बहुत अच्छे से मिलता है सर। अच्छा रोहित, आपका करंट सीटीसी कितना चल रहा है बेटा?
14.5 है सर अभी। गाइस 14.5 का पैकेज है अभी रोहित का। नेक्स्ट ईयर का टारगेट लेके चल रहा है वो 28 से 30 के बीच में। दैट इज पॉसिबल बिकॉज मुझे पता है केपीएमजी हो गया, कैपजेमिनी और काफी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो बीए प्रोफाइल के लिए एटलीस्ट 35 to 40 एलपीए का पैकेज देता है। ये चीज मुझे पता है बेटा। यस सर, यस सर। एंड ये जो मैं बोलता हूँ ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको फाइनेंशियली सेटल होना है। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू ग्रो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड मैं हमेशा एक चीज और बोलूंगा बेटा, जॉब करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना पॉसिबल है। हमें पता होना चाहिए था। राइट ना, बहुत सारे बच्चे ये फील करते हैं भी यार जॉब करके रिटायरमेंट लाइफ पॉसिबल नहीं है। रोहित, आपको लगता है कि ये चीज जॉब करके रिटायरमेंट लाइफ पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आपने फाइनेंस में भी काम किया बेटा। इजीली पॉसिबल है सर। हम्म। डिपेंड आप कैसे जॉब कर रहे हो। मैं अगर अपने आप को अभी कंपेयर करूँ ना, आई वुड हैव बीन इन बैंकिंग, तो ये हम्म। पैकेज तो मैं आराम से पहुंच जाता। बट द वे हम्म। ऑफ लिविंग मेरा है, जो स्टैंडर्ड है, वो मैं हम्म। मैच नहीं कर पाता सर। बिकॉज मैं नहीं कहता बैंक जॉब्स आर वेरी बैड, मैंने 10 साल करा। दैट वाज हम्म। माय ड्रीम, गेटिंग इनटू बैंक्स, आई डिड दैट। बट हम्म। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है सर, जब आपको रियलाइज होता है कि आई एम गेटिंग इनटू वेरी ह्यूज प्रेशर्स। हम्म। उस चीज से अगर निकलना है तो दिस इज द वे। नहीं, इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रोहित, पता है ना, सही गाइडेंस मिलना बेटा। बहुत हाँ। ऑनेस्टली मैं बात बताओ। बिकॉज व्हाट हैपेंड विथ मी, अगर मैं मेरी लाइफ का अगर थोड़ा सा 2 मिनट में बताऊं। मेरे मम्मी जो है वो क्लास 8 तक पढ़ाई किया है, मेरे पापा जो क्लास 4 तक पढ़ाई किए थे। तो नाउ ये चीज एक्सपेक्टेशंस करना कि मेरे मम्मी पापा मुझे करियर का गाइडेंस देंगे पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एज आई यस सर। सेड कि माय पेरेंट्स आर लाइक फार्मर। एंड आई फील ऑलवेज प्राउड। मैं इसमें कोई दोहरा ही नहीं बेटा। मैं बीच सड़क में नोएडा की वो सेक्टर 62 की मेट्रो स्टेशन में खड़ा होकर बोल सकता हूँ माई फादर इज अ फार्मर। और मुझे फील होता है बिकॉज उन्होंने जो मेहनत की, मेरे मम्मी ने जो मेरे लिए मेहनत किया है, इट इज लाइक ऑसम। और उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आई ऑलवेज लाइक, मेरे लिए अगर पॉसिबल है कभी अगर ऐसा कुछ कर पाया तो उनके लिए मैं मेरे गांव में उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है मेरे मम्मी के नाम पे, ताकि वहाँ के जो बच्चे श्योरली हैं वो अचीव होगा पढ़ाई। सर। थैंक यू सो मच। तो बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी बनाऊंगा वहाँ पर, जहाँ पर वो बच्चे, मेरे जैसे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो लोग आएंगे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर वगैरह वहाँ पर देना है मुझे। तो दैट इज माई ड्रीम एंड करूंगा, आई बिलीव सो, जितना टाइम मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे लिए कैसा था, मैंने जैसे 10th क्लोज किया तो मुझे लगा यार क्या लेना चाहिए, बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था। सो आई टुक दैट, चलो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। ग्रेजुएशन क्लोज हो गया, उसके बाद मुझे नौकरी चाहिए था। तो ग्रेजुएशन से पहले 2-4 नौकरी मैं कर चुका था, सेल्स एंड मार्केटिंग ये वो वगैरह समथिंग। देन आफ्टर यस सर। दैट मैंने कॉल सेंटर में मेरा करियर मिल गया। तो करियर वहां से शुरुआत हुआ, 2-4 प्रमोशन भी फट 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 हो गया मुझे। उसके बाद एक प्रमोशन वगैरह जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वो मुझे मिला। देन आफ्टर दैट मेरा एक दोस्त था, दोस्त है अभी भी, संदीप डोंगरे। ही इज फ्रॉम एमपी एक्चुअली। ही ओके। सेड वन डे कि विप्लव, मेरे पास ना कंप्यूटर वगैरह था, मेरे रूम पे किसी के लिए भी नहीं था। तो ही सेड कि विप्लव, तू आईटी में क्यों नहीं जाता? बोला आईटी में जाना कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम बैचलर ऑफ आर्ट्स। बोला आईटी का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमसीए बीसीए डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करते हैं तेरा नॉलेज एंड स्किल्स। एंड ऐसा बहुत सारे चीज है जो कोडिंग की मतलब बिना भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल एंड ऑल। यस सर। रियलाइज कि एसक्यूएल भी होता है। देन मेरे पास सिस्टम वगैरह था तो मैंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दिया। एंड उसके बाद आईटी की जर्नी शुरू हो गई। सो नाउ कम बैक टू द पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करूं कि गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे संदीप ने मुझे गाइड किया था, आज जैसे रोहित हो गया, लास्ट वीक में अभिलाष आया था, उससे पहले जो भी जैसे अक्षय आई बिलीव सो, उसके बाद अशोक हो गया, ये जो बच्चे प्लेस्ड होके गए बिकॉज डीबीएस का प्रॉपर गाइडेंस उसके साथ आज कंस्ट्रक्टिव तरीके से स्टेप बाय स्टेप में है। एंड आई बिकॉज अभी करंट सिनेरियो का अपडेट मिलता है ना सर, व्हाट द इंडस्ट्री इज आस्किंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ बिलीव। स्किल्स दे रिक्वायर्ड, व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो एक बहुत हेल्पफुल चीज होता है सर। If I राइट। would have not been into DBS IT, this would not have been so easy for me. Although मेरे पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था बैंकिंग का, बट वो एक स्ट्रीमलाइन नहीं पता चलता सर कि हाउ टू क्रिएट अ सीवी, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन आईटी। मेरे को सेल्स का प्रेजेंटेशन आप आज पूछ लो, मैं आपको आज दे दूंगा। आईटी का मेरे को नहीं पता था सर। राइट। सो दैट इज व्हाट दे हेल्प मी आउट। Right. So thank you so much, Rohit, for थैंक्स joining this सर। session, beta. थैंक यू सर, And थैंक यू। I believe यहाँ से आपको once again I'll wish you all the best in your career. बहुत कुछ आगे रहेगा। यस नोएडा सर, में आने के बाद जरूर मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा। डेफिनेटली ना सर। ठीक है। मेरे लिए अच्छा ओके। अपॉर्चुनिटी अगेन मीट यू फिजिकली, पुणे नहीं जाना चलो पड़ेगा। ठीक है, चलो नो इश्यूज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।
रोहित चलो बेटा, टेक केयर एंड आगे थैंक बढ़ो। यू सर। ठीक है, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सो हैव मच। अ ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन।